Hello everyone, welcome to my new video. Today we are going to discuss metals and non-metals chapter. So we will discuss it in detail and this chapter will be in different parts. So today in the first part we are going to discuss the introductory part of the metals, physical properties. Okay, so let's begin and I hope the video will be very helpful and I promise you it will be helpful for you. So now let's start with the metals and non-metals. First, the representation of an element. How we represent an element. Okay, so suppose there is an element X. So how we represent it with its atomic number and atomic weight. So here you can see it. The element X is written. Okay, on the left side, lower left side, there is a Y, small y, and upper right side there is a Z, small z. Okay, so what this symbol implies, where X is an element and the atomic number of element is the Y and the atomic weight of the element is Z. Okay, so here you can see, for example, I have taken helium, He, where as we all know, the atomic weight of helium is 2 and its atomic weight is 4. Likewise, carbon, C, its atomic number is 6 and its atomic weight is 12. Likewise, nitrogen, atomic number is 7 and atomic weight is 14. Okay, so that was the first part, representation of an element. Okay, so we will now discuss metal part. So the arrangement of metal in the periodic table and its different properties. Okay, so first start with the arrangement in the periodic table. So I'm sure you all know the periodic table, you have seen it. So basically we all know in periodic table from left to right periods is there. Okay, from left to right we proceed in the periodic manner. Period is there. From upward to downward or downward to upward, the vertical column, they are known as groups. Okay, so from left to right is group, from upward or downward, from upward to downward there is a group. Okay, so let's see the placement of metals. Here I took the example of only first A group and second A group. Even the even the metals are also in D block element, but right now I haven't taken it, so we will discuss it. We will discuss them in the D block section. Okay, so let's start with the position. Okay, so in the topmost position in the second period there is a lithium. Beneath that is sodium, this is potassium, this is rubidium, and this is cesium, and this is francium. Okay, so these belong to the first A group. In some book it will be written 1 single numeric form, or in a Roman form 1A. So I have taken both of it. Okay, likewise after 1A there will be a second A group or 2. Okay, second group. Okay, so in the first, let's concentrate over the first group. The placement of the element will be in the second period there will be lithium, in the third period there will be sodium, fourth period potassium, in the fifth period rubidium, cesium, and francium. I have written their atomic number also, so please learn them. Okay, that will be very helpful for you. In the second group, in the second period there is a beryllium, in the third there is magnesium, in the fourth calcium, strontium, barium, and radium. Okay, so that is the arrangement of element in the first A group and the second A group. Okay, now let's move on some points here. Metals are placed in the group first and second. Of course they are also in the D block, so we will take them separately. So just focus over here the two group only. Okay, the first group is also known as alkali metal. Okay, which one? This one. These whole elements are known as alkali metal elements. Okay, in the second group is also known as alkaline earth metal, which this one. So second group is known as alkaline earth metal, and the first one is the alkali metal. Okay.
Next point, these are also called s block elements. Okay, why it is called s block elements? Because the last electron enters in the s orbital. We will see it all, why and how it happens. Okay, so just remember these two are known as s block elements. Now the general electronic configuration of the alkali metals. Okay, so as we know कि electronic configuration denotes the number of okay yeah there is a doubt, so okay, let's proceed with the topic. Okay, we are here discussing the general electronic configuration alkali metals. So there is a general way of writing the electronic configuration for alkali metals. Here we write the noble gas configuration, and we see after noble gas configuration there is a last electron which remains, and it will filled in the s block elements. Hence, okay, so let's see the example and we will discuss the example. Okay, for lithium, you know lithium, the atomic number is 3 and the symbol is Li. So 3 for 3 you have to write the electronic configuration. Then what we will say, 1s2 2s1. Okay, 1s2 and 2s1, 2 plus 1 that is 3. Okay, now as we know we have to write the noble gas configuration. So in periodic table, helium is a noble gas and its atomic number is 2. So here in 1s2 section we can directly write helium and 2s1. So you can see this part and this part is now identical in form. Okay, noble gas configuration ns1, that is the number of period. It is a second period element. You can see here 2, that is lithium, it's second period. So here it is written second. Okay, 2s1. तो कितना हुआ? हीलियम 2 plus 1, that is 3. Okay. Okay, some students are saying to say in Hindi also. So I will try to mix both in English and Hindi. Okay, now take the next example. ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा और बेटर क्लैरिटी आएगी हमारे को कि कैसे हमारे को अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं. फॉर एग्जांपल, वी टेक द सोडियम. वी नो द एटॉमिक number of sodium is 11, so we have to write the electronic configuration. Okay, first, so when we write the electronic configuration, we write 1s2 2s2 2p6 3s1. Okay, 11 होने चाहिए, 2 2 6 और 1. लेट्स एड अप एवरीथिंग. 2 4 10 एंड 11. ओके, एटॉमिक नंबर के बराबर आ गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसको ऊपर वाले की तरह अपन कैसे लिख सकते हैं? तो अपने को पता है कि अल्कली मेटल से पहले जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसी भी नोबल गैस का होगा. कैसे? जिस पीरियड में होगा उससे जस्ट ऊपर वाले पीरियड का नोबल गैस होगा. जैसे इसमें हमने लिथियम का क्या लिखा था? हीलियम. तो वो फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है ना. तो जिसकी बात होगी, जिस अल्कली मेटल की बात होगी, उससे पहले वाले का जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा वही आएगा. तो फॉर यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिया? सोडियम. सोडियम से पहले क्या आएगा? सोडियम यहाँ थर्ड में है ना. तो थर्ड में है, तो इससे पहले सोडियम से पहले कौन सा आ रहा होगा? दैट विल नियॉन. ओके, सो हमने यहाँ पे नियॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर 10 प्लस 1 11 हो गया, है ना. तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल का हमने देखा. ओके, आई होप क्लियर हुई होगी. ओके, सो वन मोर डिस्कशन इज देयर कि वन थिंग यू विल से कि वेन एवर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो उसी पीरियड में जाएगा जिस पीरियड में पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट प्लेस्ड है. सपोज लिथियम कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में. ओके, सो आप देखो इधर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का बन रहा है उसमें इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में जा रही है सेकेंड पीरियड में, है ना. अब फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम का देखो. सोडियम के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रही है?
थर्ड पीरियड, ये पीरियड बताता है, ओके, पीरियड का नंबर बता रहा है। तो यहाँ पे देखो सोडियम यहाँ है और कौन से पीरियड में है, थर्ड में। लाइकवाइज पोटेशियम के अंदर आएंगे अपन तो वो भी फोर्थ में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज जो जिस पीरियड का होगा उसका इलेक्ट्रॉन लास्ट में उसी पीरियड के नंबर के बराबर में जाता है ना। सो एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम, ओके, एटॉमिक नंबर इज 19, ओके। सो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोटेशियम, ओके। सो सपोज यहां क्या लेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब 2 में इतना ही तक जाता है, p तक ही होती है, 2d नहीं होती है ना। तो अब 3 में चला जाएगा, तो फिर स्टार्ट कहां से करते हैं हम, s से, 3s2 3p6, है ना। अब यहां पे ध्यान रखना है कि 3p6 अगर फिल हो जाए तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो 3d में नहीं जाएगा, वो पहले 4s में जाएगा, ठीक है। वहां एक n+l रूल करके आता है, वो आपको 11th की केमिस्ट्री में आएगी होपफुली। आई डोंट थिंक 10th में वो आपको पढ़ना होगा। सो वहां पे वो रूल यूज होता है, इस वजह से 4s1 में जाता है, ना कि 3d में जाती है, ठीक है। सो एक बार फिर से वापस देखते हैं इस एग्जांपल को, पोटेशियम को, कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पोटेशियम की, डेट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज इन सम ऑफ विथ 19 है या नहीं हो रहा है। 2 4 10 12 18 एंड 19, ये तो हो गया, ओके। नाउ अपन क्या करना है कि इससे पहले 19 से पहले कौन सा है एटॉमिक नंबर नोबेल गैस का, उसको पकड़ना है और उसको यहां बिठा देना है। डेट इज 19 से पहले कौन सा आता है, 18, डेट इज आर्गन, डेट इज अ नोबेल गैस, है ना। तो हमको 2 4 10 12 और 18 ये सबका क्या मिल जाएगा, इसकी जगह मुझे आर्गन मिल जाएगी, डेट इज अ नोबेल गैस। ध्यान रखना है हमें, सिर्फ नोबेल गैस को ही नहीं, सिर्फ नोबेल गैस को उठा के लाना है, ऐसा नहीं कि उसके बदले और भी कोई भी नंबर को उठा के लाओ, ऐसा नहीं, सिर्फ हमको सिर्फ नोबेल गैस को ही लेना है, ठीक है, अल्कली मेटल में। तो यहाँ पे नोबेल गैस में कौन आएगा, आर्गन आएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो वो ये इसके बराबर आएगा कौन, आर्गन, Ar, उसकी सिंबल है एटॉमिक नंबर 18, और ये आ गया 4s1, डेट इज पोटेशियम का 19 के बराबर, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है, लास्ट उसकी इलेक्ट्रॉन उसी पीरियड में जाती है। सपोज यहां पे देखो पोटेशियम का किस में आया, 4s1 में लास्ट वाली आई ना। तो अपन देखते हैं इधर, देखो पोटेशियम है ना, कौन से पीरियड में, 4th में। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट थिंग। नाउ अभी हमने देखा था अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम देखेंगे अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो ये कैसे प्रोसीड करता है कि कोई भी अल्कलाइन मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक नोबेल गैस आएगा, उससे जो पहले वाली होगी, उस अल्कलाइन मेटल से पहले जो पीरियोडिक टेबल में आता है नोबेल गैस वो आएगा, और उसके बाद NS2, यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है वो कहां जाता है, NS2 में जाता है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एस में फिल होते हैं, 2, अल्कली में कितने हो रहे थे, 1, ठीक है। और ये N क्या होगा, ये उसके पीरियड नंबर के बराबर होगा जिसमें वो एलिमेंट है, ठीक है ना, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए अपन ने देखा है, कौन सा लेते हैं एग्जाम्पल, बेरिलियम, सॉरी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4, है ना। तो 4 एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर क्या अपन देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, ओके। बेरिलियम से पहले कौन सा होगा इनर्ट गैस, तो वो आएगा हीलियम, ओके। हीलियम के बाद आता है नियॉन, तो नियॉन तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो हम अपन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको इससे पहले वाली लेनी है। तो डेट इज 4 से पहले कौन सी है, हीलियम है, और उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हमने हीलियम लिया, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, डेट इज 2 2 + 2 डेट इज 4, ओके। ये एटॉमिक नंबर है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ठीक है, Mg। अब नेक्स्ट एग्जांपल लो Mg के अंदर क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे तो डेट इज 12 एटॉमिक नंबर है,
1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, कितने हो गए? 2, 4, 10, 12, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। Okay, so now 12 equal to 12। Okay, now let's see which noble gas element comes before Mg, that is before the atomic number 12, that is neon, atomic number 10। ठीक है, हमें जस्ट ऊपर वाले को लेना है, ऐसा नहीं कि फिर से वापस हम हीलियम को उठा के लाते रहे, नहीं ऐसा नहीं। जिस एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, जिसकी निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उससे जस्ट पहले वाला नोबेल गैस को हमको लाना है। ठीक है, तो उससे 12 से पहले कौन सा है? नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो यू विल सी कि ये कहां गया? 3s2 में है ना, जा रहा है। अब वापस इसको क्रॉस चेक करो, क्या ये Mg पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड पीरियड में है या नहीं। ओके, सो वो हमको देखना है। ओके, Mg इज इन थर्ड पीरियड, है ना, तो ये क्रॉस चेक हो गया, चलो सही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम। कैल्शियम को Ca, इट इज नॉट O बेटा, इट इज C, सो कंफ्यूज मत होना। ओके, सो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। ओके, सो हमको सबसे पहला क्या काम करना है? अपने को करना है सबसे पहले उसकी एटॉमिक नंबर लिखनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। ओके, सो सबसे पहले अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20 का एटॉमिक। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, अभी तो 10 ही हुए हैं ना, हमको 20 तक जाना है। 3s2, 3p6, दैट इज कितने हो गए? 2 + 8 10, 10 2 + 12, 12 6 18। ओके, अब हमारे पास 18 हो गए हैं, तो अब हमें को कितना? 2 की और जरूरत है, दैट विल, मैंने अभी बोला था आपको कि ये 3p6 से डायरेक्ट 3D में मत डालना, पहले 4s पूरी फिल हो जाएगी, उसके बाद हम 3D में डालेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहले तो 4s को फुलफिल करते हैं। यहां 4s को फुलफिल किया, हमको कितना चाहिए? 2, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो चलो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़नी है, यहीं पे क्लियर हो गया, दैट इज 2। ओके, तो ओवरऑल 20 आनी चाहिए ना, लेट्स काउंट। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2, तो टोटल 20 हो गई है ना। अब क्या करना है कि अपने को नोबेल गैस कन्फिगरेशन लेना है, किससे? जो कैल्शियम के जस्ट ऊपर कौन सा नोबेल गैस है, उसका। ठीक है, तो नियॉन के बाद जो आती है नोबेल गैस, दैट इज आर्गन, उसकी एटॉमिक नंबर 18 है। अब देखो यहां पे ना 18 कैल्शियम से जस्ट पहले कौन सा है? आर्गन। ऐसा मत करना है कि हीलियम को ले लेना या फिर नियॉन को ले लेना, है ना, हम इतना पीछे नहीं जाना है, बस जस्ट उससे ऊपर जो रहेगा नोबेल गैस, उसको ही हमें लेना है ना। तो फॉर नियॉन को हमने ले लिया, डेट इज सॉरी आर्गन को लिया, डेट इज एटॉमिक नंबर 18, और इसके अंदर 2 और आएगा जो इलेक्ट्रॉन, वो 4s में चला जाएगा। ओके, सो यहां पे देखो कैल्शियम इज इन फोर्थ पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या एक्चुअली में ऐसा है? लेट्स सी इट। ओके, हियर इज अ कैल्शियम, कहां है? फोर्थ पीरियड में। ओके, दैट इज, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, सो लाइकवाइज हमने देखा अभी अल्कलाइन मेटल्स का कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले एक नोबेल गैस जो जस्ट उस मेटल के एटॉमिक नंबर से पहले आएगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका लेना है। उसके बाद उसके आउटर सेल में एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फुलफिल होंगे। ठीक है, अल्कली मेटल होता तो क्या होता? नोबेल गैस NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो नोबेल गैस NS2। ओके, ये हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, वापस एक बार देख लो, है ना। ओके, नाउ वी विल सी द बॉन्डिंग पार्ट। आखिर मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है? सो जस्ट फॉर द रिवीजन, एक बार वापस से 9th क्लास में जो रिवाइज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड कैसे बनाती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करती है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आयनिक, और शेयर करती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, देखेंगे कि मेटल्स के अंदर आके बॉन्ड कौन से फॉर्म से होती है। ठीक है, किस तरह से बनती है, लेट्स सी।
सो फर्स्ट लाइन इज देयर कि मेटल्स फॉर्म बॉन्ड बाय डोनेटिंग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय डोनेटिंग। कैसे डोनेट करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से, इट्स आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सपोज अपने ने एग्जांपल लिया किसकी, सोडियम की। ओके, अगेन वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ओके, सो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p6। कितने हुए, 2 + 2 + 6 दैट इज 10। एक जो रह गया वो जाएगा किसमें, 3s में, क्योंकि यहाँ 2 सब सेल पहले से ही फुलफिल हो गई है। अब 2d नहीं होती है तो वापस से 3s में चली गई, ठीक है। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1, है ना, 11 के लिए। तो जो सबसे बाहर, जो सबसे लास्ट में जिसकी फीलिंग होती है ना, ये सबसे बाहर वाला है ना, इसके हिसाब से सबसे आउटर, अगर बाहर से हम आ रहे हैं तो सबसे पहले ये मेरे को मिलेगा, है ना। तो ये सबसे आउटर सेल हो गया, ठीक है, और ये इनर सेल्स हो गए इसके अंदर वाले। तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, क्योंकि ये बाहर वाले सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं और इनर वाले को हम कोर सेल कहेंगे या कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। वंस अगेन, सोडियम का हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिखा। ओके, उस एटॉमिक नंबर में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा जिस सेल में जाएगा उसको वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग इन मेटल फॉर्म्स बॉन्ड बाय डोनेटिंग इट आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस लाइन से अपने को ये समझ में आ रही है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये ही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और कैसे पार्टिसिपेट करेगा, बाय डोनेटिंग इट। ओके, ये डोनेट करेगा, यानी कि इसकी लॉस होगी, है ना, ये लॉस करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यही एक ही इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा। ऐसा नहीं कि 2 इधर से भी निकाल लिया, ऐसा नहीं, जितने यहां पर रहेंगे बस वही जाएंगे और वही डोनेट होंगे और वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। ओके, सो चलो वो देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता कैसे है। ओके, so metal attained octet by donating it outermost electron as discussed. चलो alkali metal, let's see what happens in alkali metal. तो alkali metal again, our alkali metal में कौन सा है, lithium है, atomic number 3. Again we will write its atomic electronic configuration and it will be 1s2 and 2s1, है ना। ये outermost हो गया। अब इन दोनों के अंदर तो outermost यही होगी ना, तो जब ये होगी तो यही डोनेट होगी, है ना। इट विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, तो ये क्या होगा, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद लिथियम, हाउ विल इट लुक लाइक, सो इट इज द लिथियम। ओके, एटॉमिक नंबर 3 Li। अगेन डोनेट करने से एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा, क्योंकि डोनेट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है या गेन होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगी इस केस में। एटॉमिक नंबर विल बी सेम। ऐसा नहीं करना कि अगर 3 और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये 2 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑफ कोर्स Li उसके सिंबल है और एटॉमिक नंबर उसका 3 है ना। बट ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन केमिस्ट्री द लॉस इज डोनेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट विल हैव 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने 2 किए होते तो 2 पॉजिटिव चार्ज, वो ऊपर में राइट साइड में हम उसके चार्जेस दिखाते हैं। अगर लॉस है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन है तो। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, that is sodium. Okay, sodium का atomic number कितना है, 11. Okay, so first we will write the electronic configuration. तो electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6, that is 2 + 2 + 6 that is 10. अभी एक रह गया है तो वो कहाँ जाएगा, 2p फिल हो गया, अभी फिर से रह गया तो वो 3 में जाएगा। 3 के कौन से में जाएगा, s में जाएगा। x में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, पर अपने को जाना कितना है, 1, तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इजिली एकोमोडेट हो जाएगा। तो 3s1 आ गया। ओके, तो ये जो आउटर मोस्ट इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट क्या है वो 3s1 है ना। तो जब ये 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, तो यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट मीन्स कि दिस विल डोनेट। ओके,
this will lose from here this side. Okay, so after इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, so how will be the electronic configuration? It will be like sodium 11, okay, 1s2, 2s2, 2p6, okay. तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ऑक्टेट यहाँ पे इसके बन गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, 2 में 6 + 2 8. अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया, उसके कारण इसके ऑक्टेट यहाँ फॉर्म हो गया, है ना. तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अगर अपने को दिखाना हो सिंबॉलिक फॉर्म में तो अपन कैसे दिखाएंगे? दैट इज न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है. 11 इज इट्स एटॉमिक नंबर, नो चार्ज इन नाइदर गेन नॉर लॉस, तो इसको 0 कोई भी चार्ज अपन नहीं दिखा रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, तो 1 पॉजिटिव चार्ज. तो अपने को क्या दिखाएंगे? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जो अभी रेडी है किसी के साथ किसी को देने को, ताकि वो इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो और उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए, है ना. तो ये तो हो गया हमारा आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं हम अल्कलाइन मेटल में कैसे काम करता है ये, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अब चलो हमने एग्जाम्पल लिया है बेरिलियम का. एटॉमिक नंबर पता है अपना को कितना है? 4, है ना. तो उसका एटॉमिक नंबर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखनी हो तो क्या होगा? 1s2 एंड 2s2. ओके, तो इन दोनों में देखो 4 है, तो 2 + 2 4 हो जा रहा है ना. तो इन दोनों के बीच में क्या देखना है कि हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढना है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढनी है. तो वो क्या होगी? जो सबसे बाहर वाली होगी. इधर कौन सी है? 2 ही है, तो इधर में सबसे बाहर कौन सी होगी? ये 2s2 होगी, है ना. तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो लूज होगा. तो ये अल्कलाइन मेटल्स जो होंगे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे बाय डोनेटिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अगर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो हाउ विल इट लुक लाइक? इसको देखो, यहाँ बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, अगेन ये बेरिलियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 4 ही होना है, ठीक है, ये चेंज नहीं करना है, ठीक है. पर इसने लूज कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना. तो इसके पास लूज किया इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लूज किया वो दिखाते हैं, दैट इज 2 पॉजिटिव. ओके, लाइकवाइज एक एग्जांपल और देखते हैं अपन मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है. एटॉमिक नंबर इज 12. तो क्या होगा? सबसे पहले अपने को लिखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही तो है. 1s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है. 2s में भी मैक्सिमम 2 ही आएंगे, ठीक है. 2p6 में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 2p में, तो वो आ गया, ठीक है. 2 + 2 4, 4 + 6 10. ओके, अभी भी 2 रह गए हैं, तो 2p के बाद कहां जाएगा? 3s2 में. तो ये आ गए 2, दैट इज 12, ठीक है. ओके, बाय डेफिनेशन क्या था कि जो आउटर मोस्ट होगा सेल के अंदर वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा वो दैट विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो हियर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 3s2. ओके, सो व्हाट इज क्लियर कि यहां ये लूज होगी तो क्या होगा? मेटल विल पार्टिसिपेट, दिस Mg विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड. ओके, सो अगर Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक Mg12 एटॉमिक नंबर, Mg12 एटॉमिक नंबर, 2 प्लस क्यों आई? प्लस इसलिए आई बिकॉज इट लूज्ड इट्स 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, और नंबर 2 बिकॉज 2 का लॉस हुआ है ना, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो मिले हैं. ओके, वंस अगेन मे बी अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने 2 इधर से हटा दिया, इसने लॉस कर लिया, तो हम क्यों इसको बार बार दिखा रहे हैं साइड में? ओके, तो वो इसलिए कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन होता है, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन, अगर ऐसा है तो उसमें हमेशा चार्ज जो होना चाहिए ना, नेट चार्ज, वो न्यूट्रल होना चाहिए. देखो इस तरफ क्या है, अगर इस तरफ न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना. तो इधर क्या है? टोटल चार्ज है 0 हम दिखा रहे हैं, कहीं भी ना पॉजिटिव दिखा रहे हैं ना नेगेटिव दिखा रहे हैं. यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज नेट चार्ज, दैट इज 0. ओके, ठीक है. तो ये तो हो गया, हमने इंडिविजुअली हमने देखा अल्कली मेटल का, अल्कलाइन मेटल का. नाउ अ कॉमन कि अल्कली या अल्कलाइन में से कोई भी हो, अपने को अगर देखना हो, उसके दिखाने हो, अपने को शो करना हो सिंबल वाइज की पॉजिटिव
लॉस को गेन को, तो हाउ विल, तो ये एक एग्जांपल, एक इक्वेशन है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हाट, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 1 का लूज हो सकता है। तो अल्कली मेटल एटम है सपोज M, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, और इधर वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो आ गया प्लस करके, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो सपोज इट्स M मेटल एटम है, ठीक है, इसने मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है, +2, ठीक है। तो इधर ये 2 प्लस, क्यों लूज करा है इसने 2, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसने लूज करा है ना, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और एक कॉमन है कि कोई भी मेटल एटम हो, ठीक है, अगर उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इधर अपने को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, है ना। दैट इज अ कॉमन इक्वेशन। कोई भी मेटल एटम है, अल्कलाई, अल्कलाइन, कोई भी, तो अपने को अगर उसने n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो विल सो इट n। सपोज 2 किया तो 2, 3 किया तो 3, 4 किया तो 4, और लूज किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लस जितने टूट के उससे डोनेट किए हैं उस इलेक्ट्रॉन का नंबर, दिस विल बी द सेम ऑलवेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने 2 लूज किया तो ये 2 और ये 2, है ना। सो ये एक बेसिक था कि हाउ द केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड। और ये जो लॉस है अल्कली और अल्कलाइन मेटल का, दे आर गोइंग टू बी द की फैक्टर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। वहां पे अपन जब अल्कली मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अल्कलाइन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो वहां दीज ऑल कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल देयर। एंड वहां पे अगर हमारे को यहाँ पे क्लियर है ना, तो वहां पे रिएक्शंस करने में और इक्वेशन बनाने में दैट विल बी वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल, कि हमें पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, that is sodium. Okay, sodium का atomic number कितना है, 11. Okay, so first we will write the electronic configuration. तो electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6, that is 2 plus 2 plus 6, that is 10. अभी एक रह गया है तो वो कहाँ जाएगा, 2p फिल हो गया, अभी फिर से रह गया तो वो 3 में जाएगा। 3 के कौन से में जाएगा, s में जाएगा। x में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, पर अपने को जाना कितना है, 1, तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इजिली एकोमोडेट हो जाएगा। तो 3s1 आ गया। ओके, तो ये जो आउटर मोस्ट इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट क्या है, वो 3s1 है ना। तो जब ये 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, तो यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट मीन्स कि दिस विल डोनेट। ओके, दिस विल लूज फ्रॉम हेयर दिस साइड। ओके, सो आफ्टर इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हाउ विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी लाइक सोडियम 11, ओके, 1s2 2s2 2p6। ओके, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ऑक्टेट यहाँ पे इसके बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, 2 में 6 प्लस 8। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया, उसके कारण इसके ऑक्टेट यहाँ फॉर्म हो गया, है ना। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अगर अपने को दिखाना हो सिंबॉलिक फॉर्म में तो अपन कैसे दिखाएंगे, दैट इज न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, 11 इज इट्स एटॉमिक नंबर, नो चार्ज इन नाइदर गेन नॉर लॉस, तो इसको 0 कोई भी चार्ज अपन नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, तो 1 पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को क्या दिखाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो अभी रेडी है किसी के साथ किसी को देने को, ताकि वो इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो और उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए, है ना। तो ये तो हो गया हमारा आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम अल्कलाइन मेटल में कैसे काम करता है ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब चलो हमने एग्जाम्पल लिया है बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर पता है अपना को कितना है, 4, है ना। तो उसका एटॉमिक नंबर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी हो तो क्या होगा, 1s2 एंड 2s2। ओके, तो इन दोनों में देखो 4 है, तो 2 प्लस 2 4 हो जा रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या देखना है कि हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढना है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढनी है। तो वो क्या होगी, जो सबसे बाहर वाली होगी। इधर कौन सी है, 2 ही है, तो इधर में सबसे बाहर कौन सी होगी, ये 2s2 होगी, है ना। तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो
लूज होगा तो ये अल्कलाइन मेटल्स जो होंगे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे बाय डोनेटिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो हाउ विल इट लुक लाइक। इसको देखो यहाँ बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, अगेन ये बेरिलियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 4 ही होना है, ठीक है, ये चेंज नहीं करना है, ठीक है। पर इसने लूज कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, तो इसके पास लूज किया इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लूज किया वो दिखाते हैं, दैट इज 2 पॉजिटिव। ओके, लाइकवाइज एक एग्जांपल और देखते हैं अपन मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 12, तो क्या होगा, सबसे पहले अपने को लिखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तो है। 1s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 2s में भी मैक्सिमम 2 ही आएंगे, ठीक है, 2p6 में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 2p में तो वो आ गया, ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 6 10। ओके, अभी भी 2 रह गए हैं, तो 2p के बाद कहां जाएगा, 3s2 में, तो ये आ गए 2, दैट इज 12, ठीक है। ओके, बाय डेफिनेशन क्या था कि जो आउटर मोस्ट होगा सेल के अंदर वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा वो दैट विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हियर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 3s2। ओके, सो व्हाट इज क्लियर कि यहां ये लूज होगी तो क्या होगा, मेटल विल पार्टिसिपेट, दिस Mg विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड। ओके, सो अगर Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हाउ विल इट लुक लाइक, इट विल लुक लाइक Mg12 एटॉमिक नंबर, Mg12 एटॉमिक नंबर 2+ क्यों आई, प्लस इसलिए आई बिकॉज इट लूज्ड इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और नंबर 2 बिकॉज 2 का लॉस हुआ है ना, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो मिले हैं। ओके, वंस अगेन मे बी अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने 2 इधर से हटा दिया, इसने लॉस कर लिया, तो हम क्यों इसको बार बार दिखा रहे हैं साइड में। ओके, तो वो इसलिए कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन होता है, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन, अगर ऐसा है तो उसमें हमेशा चार्ज जो होना चाहिए ना, नेट चार्ज, वो न्यूट्रल होना चाहिए। देखो इस तरफ क्या है, अगर इस तरफ न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना, तो इधर क्या है, टोटल चार्ज 0 हम दिखा रहे हैं, कहीं भी ना पॉजिटिव दिखा रहे हैं ना नेगेटिव दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज नेट चार्ज, दैट इज 0। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने इंडिविजुअली हमने देखा अल्कली मेटल का, अल्कलाइन मेटल का। नाउ अ कॉमन कि अल्कली या अल्कलाइन में से कोई भी हो, अपने को अगर देखना हो, उसके दिखाने हो, अपने को शो करना हो सिंबल वाइज की पॉजिटिव लॉस को, गेन को, तो तो ये एक एग्जांपल, एक इक्वेशन है, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हाट, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 1 का लूज हो सकता है, तो अल्कली मेटल एटम है सपोज M, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, और इधर वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो आ गया प्लस करके, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो सपोज इट्स M मेटल एटम है, ठीक है, इसने मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है, +2, ठीक है, तो इधर ये 2+ क्यों लूज करा है इसने 2, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसने लूज करा है ना, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और एक कॉमन है कि कोई भी मेटल एटम हो, ठीक है, अगर उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इधर अपने को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, है ना, दैट इज अ कॉमन इक्वेशन। कोई भी मेटल एटम है, अल्कलाई, अल्कलाइन, कोई भी, तो अपने को अगर उसने n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो विल सो इट n, सपोज 2 किया तो 2, 3 किया तो 3, 4 किया तो 4, और लूज किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लस जितने टूट के उससे डोनेट किए हैं उस इलेक्ट्रॉन का नंबर, दिस विल बी द सेम ऑलवेज, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 2 लूज किया तो ये 2 और ये 2, है ना। सो ये एक बेसिक था कि हाउ द केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड, और ये जो लॉस है अल्कली और अल्कलाइन मेटल का, दे आर गोइंग टू बी द की फैक्टर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। वहां पे अपन जब अल्कली मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अल्कलाइन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो वहां दीज ऑल कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल देयर, एंड वहां पे अगर हमारे को यहाँ पे क्लियर है ना, तो वहां पे रिएक्शंस करने में और इक्वेशन बनाने में दैट विल बी वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल,
कि हमें पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द physical properties of the metal. Okay,